Today topic is array in the lab. As we know in the C, array is the collection of the data element of same time. Similarly, when we define array in the lab view, array is the group data elements of the same type. And next line, an array consists of elements and dimension. और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो array होता है which consist of the elements and dimension. Elements are the data that make up the array. तो हमें आप ये कह सकते हैं कि elements के help से हम array को बनाते हैं. A dimension is the length, height, depth of an array. तो हम यहाँ पे array का एक dimension define करते हैं just like the length, height and depth of an array. A array can have one or more dimension. जैसे हम पढ़े हैं सी में कि हमारे जो एरे होते हैं एक सिंगल डायमेंशन या उसको वन डायमेंशन भी कह सकते हैं और टू डायमेंशन. इन टू डायमेंशन वी डिफाइन द रो एंड कॉलम. तो सिमिलरली इन द लैब व्यू एरे हैज़ द वन और मोर डायमेंशन and as many as 2 to the power 31 minus 1 elements per dimension, memory permitting. Okay, and then you can build array of numeric, boolean, path, string, waveform and cluster data type. हम यहाँ पे लैब व्यू में हम जो एरे को जो डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ द न्यूमरिक मीन्स न्यूमरल वैल्यू, बूलियन मीन्स ट्रू फॉल्स, path, string means alphabet, waveform means chart and cluster type means mixed data type. Consider using array when you work with a collection of similar data and when you perform repetitive computation. Array are ideal of storing data your collect from the waveform and data generated in the loop. Each iteration of the loop produces one element of the array. तो सिंपली हम यहाँ ये कह सकते हैं कि array में डेटा को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे लूप्स का यूज करते हैं और at each iteration of the loop produce one element of the array. Now array element are ordered just like ये ordered way में होता है. An array uses an index so you can readily access any particular element. So for accessing the data, array uses the indexing technique. Means by using the indexing we can access the any particular element from the array. The index is 0 based, which means it is in the range 0 to n minus 1, where n is the number of elements in the array. If there are n elements in the array, then indexing is 0 based means indexing I always start from the 0 and it ranges from 0 up to n minus 1 when n is the number of element in the array. For example, if you create an array of the planets in the solar system, as we know that the number of planets in the solar system is 9, that is n is equal to 9 for the 9 planets. So the indexing range from 0 to 8, and here 8 is calculated from by using the formula n minus 1, and here n is equal to the n 9, and Earth is third planet, so it has an index of 2. ओके तो हम ये कह सकते हैं कि हम इंडेक्सिंग की हेल्प से अगर हम ये डिफाइन करें, अगर आपका थर्ड प्लेनेट अगर अर्थ है तो इंडेक्सिंग के बिहाफ पे उसकी वैल्यू 2 होगी. नाउ नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट द एरे कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर इन द लैब व्यू. तो सिमिलरली मैंने आपसे ये डिफाइन किया था कि हमारे जो कंट्रोल पैलेट्स और फंक्शन पैलेट्स होते हैं रिलेटेड टू द फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम. तो सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल्स इन द कंट्रोल पैलेट्स वी डिफाइन द या क्रिएट array controls or indicator and place it on the front panel. ओके तो जस्ट लाइक हमने अभी जब लूप हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो वी हैव क्रिएटिंग अ एरिया जस्ट लाइक द रेक्टेंगुलर सेल एंड ड्रॉप द आइटम्स वन बाय वन इन द सेल. तो सिमिलरली हम एरे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक हम एरिया को डिफाइन करते हैं एंड जस्ट लाइक ड्रैग कंट्रोल्स और इंडिकेटर इनटू द एरे सेल. If you attempt to drag an invalid control or indicator such as
एक्स वाई ग्राफ, जस्ट लाइक अगर हम ये ट्राई करते हैं इनवैलिड कंट्रोल्स और इंडिकेटर इफ जस्ट लाइक व्हेन यू ओपन द array, तो देयर आर द controls and indicator value not in the xy graph. If you select the xy graph, then it is the invalid control or indicator and which can't be accessed in the array cell. सो जब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो मीन्स कंट्रोल पैलेट्स में हम जब एरे में जाएंगे तो वनली एरे कंट्रोल्स और एरे इंडिकेटर विल बी सोन. नाउ हियर जो टॉप फिगर आपको दिख रहा है, टॉप फिगर मीन्स दिस वन, here we consider the front panel for the single dimension, and one indicate index display means it can be increased or decreased depend upon the to access the number of element या which particular element access from the array, and then number two indicate the element display. So in this single dimension we are using the index display, and in the array there is the two elements, and the indexing is start from the 0 up to n minus 1. So in this array, and here is the two element, then indexing is start from the 0, and the last indexing is 2 minus 1 is equal to 1. Okay. Now this is the single dimension, and this is the example, the visualization of the single dimension in on the front panel in the Labview. And the next two dimension array, as we know, for the two dimension array we require row and column, as shown in the figure. A 2D array store elements in a grid. It require a column index and row index, both of which are zero based to locate an element. एंड जस्ट लाइक हमने सिंगल डायमेंशन में ये कंसिडर किया था, अरे में जो हम इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, एंड इन टू डायमेंशन अरे indexing or it start from the zero based means here we can say that in column index having the 6 column means n is equal to 6, then the numbering indexing start from 0 up to 5, and we can say that, and here the number of column is 6, and for the row, and here we can say that there is the 4 row means indexing start from the 0 up to 3 means 0 1 2 3. तो हम यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स या रो को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली, अगर हमने ऑटो इंडेक्सिंग अगर ऑन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेगा कि हमारा वो कितने तक हमारा उस इंडेक्स की वैल्यू हमारी जाएगी. नाउ द फिगर 5.3, ओके, दिस वन, सो द टू डायमेंशन अरे इन द फ्रंट पैनल. तो आपको दिख रहा होगा सबसे लेफ्ट हैंड में हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे टू डायमेंशन एरे को मीन्स एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए रो एंड कॉलम्स की वैल्यू रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे आपका 3x3 मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग 1,1. 1,1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो सिमिलरली वी कैन एक्सेस अप टू द 3,3 मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम. तो इस तरीके से हम रो एंड कॉलम को हम डिफाइन करके हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसीलिए आप इंडेक्सिंग के लिए दो आपके टर्मिनल्स यहाँ रिक्वायर्ड होंगे, इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एंड देन हियर एग्जांपल ऑफ द 3x3, तो टोटल हम यहाँ पे 9 एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स वैल्यू. देन क्रिएटिंग एरे कांस्टेंट. तो जस्ट लाइक हमने अभी तक हमने एरे कांस्टेंट मीन्स हम जब ड्रैग करते हैं तो एरे कंट्रोल्स और इंडिकेटर साथ साथ एक कांस्टेंट का भी हम वहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं. तो हम वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द एरे कांस्टेंट एंड पुट इन द एरे सेल, एंड विच इज यूज्ड एज एरे कांस्टेंट एंड विच आर यूजफुल फॉर पासिंग द डेटा इनटू द सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन.
नाउ ऑटो इंडेक्सिंग, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ऑटो इंडेक्सिंग का मीन्स क्या है, जस्ट लाइक हमारे जो एरे जो डिफाइन होते हैं, तो एरे को एलिमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो ऑटो इंडेक्सिंग की हेल्प से इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ elements in the array or decrease the number of the element in the array, automatically auto indexing can update the value according to the number of element in the single dimension or in the two dimension. हियर ये आपको जो फिगर दिया हुआ है, दिस फिगर सो okay, means how to create the elements in the array of single dimension. And here we consider the for loop, because जैसे मैं डिस्कस किया था, जो फॉर लूप होता है जस्ट लाइक, जैसे अगर हम रेक्टेंगल का अगर हम राइट साइड आर में देखें तो उसमें हमारे जस्ट लाइक लुक लाइक द नंबर ऑफ द पेजेज इन द बुक। तो सिमिलरली वन सिंगल पेज रिप्रेजेंट द वन इटरेशन, या फॉर ऑपरेटिंग द वन सिंगल लूप। और मीन्स अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है n इज इक्वल टू 6 से, मीन्स देयर इज अ 6 नंबर ऑफ द लूप्स इन देयर, एंड एच each time, and the a loop is executed for 6 time, means here is the number given is 6, and I represent is the which number of times can be iterated। एंड रैंडम नंबर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मीन्स विच प्रोड्यूसेस द नंबर फ्रॉम 0 to 1, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and less than equal to 1 every time each iteration, the number produced always between the 0 and 1। and here is the array means which show the dimension at each iteration, a single element is put in the array, and here the six time the loop can be iterated and we get the six element in the array। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम हमारा जो लूप एग्जीक्यूट होगा तो एक एलिमेंट्स जो मिलेगा वो बिटवीन 0 and 1, तो वो हमारा वो एरे में प्लेस्ड होता चला जाएगा। एंड हियर हमने देखा जो हमने एरे जो यहाँ पे लिया हुआ है डेटा टाइप वो ऑरेंज है, तो सिंपली इट कैन रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। तो फॉर सिंगल डायमेंशन एरे के लिए हम यहाँ पे सिंगल लूप का यूज करेंगे, ओके। एंड देन क्रिएटिंग द टू डायमेंशन एरे, now this is the figure of the block diagram for the two डायमेंशन अरे इन द Labview। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट डायमेंशन में आपने एक सिंगल लूप यूज किया हुआ था, तो यहाँ पे हम जो है टू डायमेंशन के लिए हम टू लूप का यूज करेंगे, एंड देन आउटपुट इज कनेक्टेड टू द बोथ लूप, ओके। मीन्स वन फॉर द रो एंड वन फॉर द कॉलम। मीन्स अगर हमें एक्सेस करना होगा किसी भी एलिमेंट को एरे में, तो हमें रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। एंड सिमिलरली वी टेक द, हमें यहाँ पे और जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कॉलम लिया, कॉलम हैविंग द 6 एंड रो हैविंग द नंबर ऑफ रो इज 4। एंड तो एवरी टाइम जब हमारा ये एक्सेस होगा तो एक सिंगल टाइम हमारा कॉलम एक्सेस होगा, देन एक बार हमारा रो एक्सेस होगा, देन जब एक बार लूप चलेगा तो रो एंड कॉलम दोनों एग्जीक्यूट होंगे एट ए टाइम, देन वी गेट द एलिमेंट पुट इन द एरे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है, आपके 6 कॉलम हैं और 4 रो हैं, मीन्स हमारे यहाँ पे तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे 6 कॉलम और 4 आपके एलिमेंट्स में प्लेस होंगे, तो टोटल हमारे जो एरे होंगे वो 24 एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमारा छोटा सा एक एग्जांपल था हाउ टू क्रिएट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ऑफ द टू डायमेंशन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो लूप यूज करेंगे, दैट इज़ फॉर वन फॉर द कॉलम एंड वन फॉर द रो। और आपको ये दिख रहा है कि दोनों लूप के जो रेक्टेंगल के जो राइट हैंड साइड हैं वो कनेक्टेड टू ईच अदर, देन वी गेट द आउटपुट, मीन्स देन वी गेट व्हेन द रोज एंड कॉलम विल बी एक्सेस, देन वी गेट द एलिमेंट्स एंड पुट इन द एरे। नाउ
these are the function of the array. Means the first one is the array size. array size simply हम ये कह सकते हैं कि how the size of the array can be defined which depend upon the number of the element. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक array लिया हुआ है having the size of the 3 and which consists 742. ओके, देन नेक्स्ट वन इज इनिशलाइज एरे. मीन्स हम जब एरे को इनिशलाइज करते हैं तो वी गेट द एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी एरे में कुछ भी हो सकती है. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डायमेंशन साइज आपका 3 है और जिसके सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पे 4 हैं. देन अरे सबसेट, जस्ट लाइक हमने सबसेट पढ़ा होगा, जो हमारे सबसेट होते हैं जिसके सारे एलिमेंट सेट में बिलोंग करें. तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इनिशलाइज अरे में वो लाई कर रहे हैं. तो दिस अरे सबसेट ऑफ द इनिशलाइज अरे. देन बिल्ड अरे. बिल्ड अरे मीन्स हम दो छोटे छोटे एरे को यूज करके हम बड़े एरे को बना सकते हैं, आप ये कह सकते हैं. देन वी आर यूजिंग द वर्ड कॉन्कैटिनेंट. मीन्ट हम छोटे छोटे एरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे दो वे से हमने किया हुआ है. जस्ट लाइक आपने देखा फर्स्ट वाले केस में जब आपने 742 और 444 को आपने जब ऊपर नीचे अरेंज किया हुआ है, मीन्स तो इस केस में आपने ये कहा है कि यहाँ पर डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है. मीन्स 742 एंड 444 आपका सिंगल डायमेंशन था, तो इसके हेल्प से आपका ये 2 डायमेंशन हो गया. देन अगर आपको सिंगल डायमेंशन को अगर आपको लेंथ अगर इंक्रीज करना है तो आपको दिख रहा होगा जो 742 है और 444 हमने सीक्वेंस में 1 बाई 1 अरेंज कर दिया. वी गेट द तो हम यहाँ पे दो छोटे एरे को 2 वे कॉन्कैटिनेट्स के हेल्प से हम इनको डायमेंशन या हम एक पर्टिकुलर या उसके एलिमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ इंडेक्सिंग एरे. तो इंडेक्सिंग जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स. तो हम यहाँ पे इंडेक्स के हेल्प से हम यहाँ पे एलिमेंट को भी एक्सेस करते हैं. जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे एरे कंसीडर किया हुआ है having the element in the first row is 742 and second row is 444. And now if you write the index array function return the following array of index row of 0. अगर हम यहाँ पे मान लिया अगर हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स रो, अगर हम 0 हमने किया तो वी गेट द एलिमेंट 742. इफ़ यू पुट द 1 देन वी गेट 444. अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स कॉलम ऑफ 0, तो इंडेक्स कॉलम ऑफ 0 मतलब 7 and 4 हो गया. मीन्स पहला कॉलम एक्सेस होगा, देन 1 मीन्स 4 4 एंड देन 2 मीन्स 2 4. तो सिमिलरली हम यहाँ पे इस इंडेक्सिंग एरे की हेल्प से हम सिंपल अगर हमें इंडेक्स को प्रोवाइड कर दिया मीन्स दैट इज एक करस्पॉन्डिंगली रो एंड कॉलम के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. This is all about the array in the lab view.